My name is Neha Byadwal. I'm AIR 260 in this UPSC CSC 2021, and I belong from Jaipur, Rajasthan. And I've done my graduation from IIT Kanpur, both my BS and MS in economics from IIT Kanpur itself. I graduated in 2019, and from 2019 onwards, I've been preparing for the civil services. And I've studied for 3 years, and this was my second attempt. And yeah, that was basically it for as per my description. My journey has been full of ups and downs, as most of you have been experiencing or have experienced. Uh, but I've learned a lot of things from my journey. So in 2019, I came to Delhi. I took coaching for 1 year, and then at the end of the year, COVID hit, and so I came to my hometown, that is Jaipur. So for the next 2 years, I studied from my home in Jaipur, and I've took all my tests from my home itself. I've done my answer writing itself from my home. So yeah, that is it. So, as per my strategy goes, during my first prelims, I just finished my coaching in 2019, and then I gave the 2020 attempt. Uh, I don't because of the COVID pandemic, all the negativities. I think that somehow disturbed me to some extent. So. Uh, that year didn't go well for me. I didn't clear prelims. I missed it by some marks. So after that, I changed my strategy. I did a lot of things that were different. Uh, I'll tell you things that I did in my next year, which helped me achieve the success. So in my first attempt, I only did basic books, and I did not attempt question papers. I did not do past year questions, and I did not take test series seriously. I just went through them. I did not revise them. So those were some major mistakes from my side. um, in my second attempt, I changed my strategy. Because I gave the attempt that year, so that uh, helped me learn a lot of things, that what I did wrong and what all I've been missing from my preparation. So in my second attempt, as soon as the prelims got over, I took some time off, like 15 20 days I took off, and then I started my preparation. But this time I started my preparation with a strategy. Earlier I did not have any strategy, so this time I started with a strategy that I'll start with my mains preparation, and along the way I will do my test of prelims as well. So in my first year, I separated both the preparation of prelims and mains. This time, I realized that that was a huge mistake that most of us do, that we separate the preparation of two. तो मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में यही किया कि I started with my mains preparation. I started actually with my optional first, and then the GS subjects. So there are different things. आपको प्रीलिम्स में बहुत स्पेसिफिक चीज़ें याद करनी होती हैं, एंड इन मेंस आपको बस ब्रॉडर एक व्यू आस्पेक्ट लेना होता है. एंड इन मेंस यू हैव टू थिंक अलॉट, एंड यू हैव टू बी अवेयर अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ. बट प्रीलिम्स में ऐसा होता है कि आपको बहुत स्पेसिफिक चीज़ें याद करनी होती हैं. तो व्हाट आई डिड वाज कि आई विल डू बोथ ऑफ माय प्रिपरेशन एट द सेम टाइम, कि मैं अपना प्रीलिम्स भी करूँगी और अपना मेंस भी साथ साथ करूँगी, जिससे कि मुझे मेरा दोनों कवर होता रहे. बिकॉज दैट ईयर prelims was in June, and the next prelims was like in October. So in that period, I did a couple of things. So after that prelims, I started with my mains preparation, and what I used to do was I used to study the subject, and I used to study the subject in a manner that I used to cover both my prelims and as well as my mains का aspect. तो मैं दोनों को ही कवर करती थी. एंड एट द एंड ऑफ द वीक, जब भी मतलब सैटरडे संडे होता था, व्हेन यू यूज्ड टू टेक अ ब्रेक, मैं भी ब्रेक लेती थी सैटरडे संडे को.
तो ऑन सैटरडे संडे व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ आई यूज़ टू टेक वन टेस्ट ऑफ मेंस और एक टेस्ट मैं प्रीलिम्स का लेती थी। तो मेरा दोनों कवर होता रहता था कि मैंने दोनों कि पिछले वीक में जो भी मैंने पढ़ाई करी है, जैसे मैंने कोई एक सब्जेक्ट उठा लिया, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, तो उसका मैं एट द एंड ऑफ द वीक ऑन सैटरडे संडे आई यूज़ टू गिव दोनों के टेस्ट, मतलब एक प्रीलिम्स टेस्ट देती थी, एक मेंस टेस्ट देती थी। तो इससे एक आपको खुद को भी एक सेटिस्फैक्शन होता था और खुद को भी आपको पता चल जाता था कि आपकी प्रोग्रेस क्या है इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन, बोथ मेंस एंड ये प्रीलिम्स का। बट मेरा फोकस स्टार्टिंग में 2 months बिफोर द एक्चुअल प्रीलिम्स ऑफ 2021 कि आई यूज़ टू फोकस मोर ऑन मेंस, कि मतलब मेरी मेंस की तैयारी पूरी हो जाए, बिकॉज इन माई लास्ट अटैम्प्ट आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर मेंस, आई ओनली प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एंड दैट वाज अ ह्यूज ब्लंडर। तो सेकेंड अटैम्प्ट में व्हाट आई डिड इज़ कि अब मैं सबसे पहले मैंने मेंस की तैयारी करी और सबसे पहले ऑप्शनल की, क्योंकि माय ऑप्शनल वाज इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में बहुत बहुत वाइड सिलेबस है। तो मैंने अपना टेस्ट सीरीज़ चालू कर दी जस्ट आफ्टर प्रीलिम्स। तो आप भी, अगर आप अभी आप जो भी अब नेक्स्ट अभी देने वाले हैं, जो जिनको लग रहा है कि उनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया और जिनको नहीं भी लग रहा है उनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी अभी से मेंस की तैयारी चालू कर दीजिए। मतलब आप जो भी है आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए अभी ही, मतलब लाइक इन मे बी बाय द नेक्स्ट वीक आप अपनी चालू कर दीजिए। तो हाँ, तो आप अपने टेस्ट सीरीज़ अभी से चालू कर दीजिए, बिकॉज आप अपने टेस्ट के साथ साथ अपनी जब प्रिपरेशन करेंगे तो आपको अपनी प्रोग्रेस पता चल जाएगी कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको और कितना पढ़ना है और कहाँ आप क्या कहते हैं, आपको किस किस टॉपिक पे कितना कितना आपको पढ़ना है और आपको किस तरह से आंसर टैकल करना है, आंसर राइटिंग टैकल करनी है। तो हाँ, आई वुड सजेस्ट कि आप अभी से अपनी मेंस की तैयारी चालू कर दीजिए, नो मैटर व्हाट आपका स्टेटस जो भी हो। तो दैट वाज इट। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज, अच्छा ठीक है, बिफोर आई गो फॉरवर्ड लेट्स टेक अप योर क्वेश्चंस, ठीक है। सो सम ऑफ यू आर आस्किंग कि व्हाट शुड आर स्ट्रैटेजी फॉर द 2023 अटेम्प्ट। तो फॉर 2023 attempt you should be studying the basic subjects now. For example, NCRTs, you can definitely do NCRTs right from the 6th standard. I also did NCRTs, because although 6th and 7th and 6th to 10th NCRTs are not that important, but they help you build a clarity and they help you build a base for your preparation. So you can do NCRTs from now on, और बाद में जाके व्हेन यू आर डन फ्रॉम 6 to 12 NCRTs, एंड दे आर NCRTs ऑफ जैसे हिस्ट्री की हो गई है और जोग्राफी की हो गई है, और फिर हिस्ट्री जोग्राफी दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट दैन पॉलिटी, एंड you can also do science and technology की NCRTs which are like physics, chemistry and biology, but not that in detail. मतलब आप पढ़ सकते हैं 6 to 12, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, आई डिड नॉट स्टडी साइंस की NCRTs, बट आप पढ़ सकते हैं अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, बिकॉज दे 6 to 12 में दे गिव यू अ क्लैरिटी। तो जो भी अब 2023 का अटैम्प्ट देने वाले हैं, तो आप अपनी जो भी बेसिक बुक्स हैं उनसे स्टार्ट कर दीजिए। फॉर NCRTs तो बिल्कुल मस्ट है। तो फॉर लाइक नेक्स्ट 3-4 months यू शुड बी डूइंग NCRTs, और बिल्कुल अच्छे तरीके से। उसके बाद यू टेक अप द नेक्स्ट बुक्स, लाइक जो भी हमारी बेसिक बुक्स होती है, जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत होगी, मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम होगी, इस तरह की जो बेसिक बुक्स है जो आपको हर जगह अवेलेबल है, तो नेक्स्ट आप वो स्टार्ट कर दीजिए। तो फिर 2023 सिंस अभी तो बहुत बाद में है, तो जब एग्ज़ाम में जब 1 साल रह जाएगा, तब यू शुड बी स्टार्टिंग योर आंसर राइटिंग, एंड बिफोर दैट यू शुड बी डन योर विथ योर बेसिक्स, सारे बेसिक्स, मतलब NCRTs कर ली, बेसिक बुक्स कर ली, या फिर अपना जो भी ऑप्शनल का जो भी मटेरियल है वो कलेक्ट कर लिया और उनको एक बारी बेसिक रीडिंग दे दी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शनल आप अपना अभी डिसाइड कर लीजिए, जो भी आप 2023 का अटैम्प्ट देने वाले हैं अभी से अपना ऑप्शन डिसाइड कर लीजिए, बिकॉज दैट हेल्प्स अलॉट कि आपको पहले से क्लैरिटी है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स ऑफ GS एंड ऑप्शनल पेपर 2? सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। GS में वी डोंट डू इतना डिटेल में सारी चीज़ें। GS में या तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी फॉर GS इकोनॉमिक्स कि मैं सिर्फ करंट अफेयर्स करती थी एंड बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। तो खैर मेरा तो बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में था, तो मैंने इतनी अलग से प्रेपरेशन नहीं करी इकोनॉमिक्स में, बट फ्रॉम माई फ्रेंड्स एक्सपीरियंस और बाकी सबके एक्सपीरियंस आई कैन टेल कि इकोनॉमिक्स GS इकोनॉमिक्स में आपको इतना डिटेल में नहीं जाना होता है।
आपको यू हैव टू नो बेसिक इश्यूज जो भी दैट आर हैपनिंग अराउंड अस, द करंट अफेयर्स एंड यू नो द प्रोज, इम्पैक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज, ऑल ऑफ दोज एस्पेक्ट्स जो भी इश्यूज हैं. और जो ऑप्शनल का पेपर टू होता है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट बिकॉज यू हैव टू स्टडी फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंट इंडिया टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया टू करंट टाइम्स एंड ऑल ऑफ द डिटेल्स. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक 5 year plans, तो 5 year plans में GS में वी जस्ट हैव टू नो दैट येस 5 year plans वर गिवन एट दैट टाइम. बट ऑप्शनल में यू हैव टू बी वेरी specific that okay this was the first 5 year plan, these were the provision कि ये सब उनमें उन्होंने बातें करी थी एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ. बट ये सारी चीज़ें आपको GS में नहीं पढ़नी होती है. तो जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की इकोनॉमिक्स है दैट इज़ बहुत बड़ी एज़ कम्पेयर टू GS में तो आप बस बेसिक अपना देख लीजिए जो भी करंट अफेयर्स है और बस इतना ही. और ये जो सारी चीज़ें हैं ये बेसिकली NCERT से कवर हो जाती है एंड ऑल द अदर बुक्स. फॉर एग्जांपल रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी, तो उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर हो जाते हैं. दे कवर इट फ्रॉम द GS एस्पेक्ट. तो आपको अगर ये सारे एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं तो आप एक बारी रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी पढ़ लीजिए. व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन द इकोनॉमिक्स ऑप्शनल? आई वुड से अ लिटिल बिकॉज जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है उसमें उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं एंड दे आर कमिंग इन द रीसेंट ईयर्स. पहले आते भी नहीं थे क्वेश्चंस, तो दे आर कमिंग द रीसेंट ईयर्स. और ऐसे ऐसे कोई रूल है नहीं. आपको आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपको वैसे भी समझ आ जाएंगे. आप तो इतना कोई मेजर रोल नहीं है. बट इफ़ योर मैथमेटिक्स इज़ मतलब स्ट्रॉन्ग तो आपको डेफिनेटली हेल्प तो होती है. बट अगर आपके मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं भी है और कोई बैकग्राउंड नहीं है तो इट डजेंट मैटर आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इतने हार्ड नहीं आते हैं और वंस यू आर स्टार्टिंग तो आपको वो सब सॉल्व करना वैसे भी आ जाएगा. तो मतलब देर इज़ अ रोल बट इतना कोई मेजर रोल नहीं है. Okay, I'll take up the next question. Okay, so before going further, let's talk about my sources for prelims and both for mains. I kept the sources same for both prelims and mains. So if we start with history में ancient and medieval history I did NCERTs जो कि old NCERTs है वो करी मैंने. और उसके अलावा I used to do वाजीराम की येलो बुक फॉर बोथ एंशियंट एंड मिडिवल. आई बिकॉज वैसे तो येलो बुक में सारा NCERT का मटेरियल कवर हो जाता है बट फिर भी NCERT दे गो बियॉन्ड. तो मैंने ये सिर्फ 2 सोर्स रखे फॉर बोथ प्रिलिम्स एंड मेंस. देन गोइंग फर्दर मॉडर्न हिस्ट्री में तो एक ही सोर्स मेन है बस स्पेक्ट्रम. आई डिड नॉट डू NCERT. फिर पॉलिटी में आई डिड ओनली लक्ष्मीकांत और इसके अलावा और कुछ भी नहीं. आई डिड नॉट डू इवन NCERTs. मतलब मैंने एक बार बेसिक रीडिंग करी थी बट आई डिड नॉट डू माई पॉलिटी फ्रॉम NCERT. बस एक बेसिक रीडिंग दैट टू इन द स्टार्टिंग टू बिल्ड द बेसिक्स. तो मेरा मेन सोर्स लक्ष्मीकांत था. फिर जोग्राफी में आई डिड NCERTs 11th-12th की एक्सटेंसिवली. मतलब मैंने उनको बार बार रिवाइज़ किया बिकॉज दे कवर द सब्जेक्ट एक्सटेंसिवली, द जोग्राफी सब्जेक्ट फॉर UPSC. तो मैंने उसकी NCERTs करी जोग्राफी की दोनों. उसके बाद में जोग्राफी में आई डिड नॉट डू एनी बुक. देयर इज़ अ बुक GC लियोंग विच यू कैन डू बट आई डिड नॉट डू बिकॉज मेरे को ऐसी नीड नहीं हुई. आई रेफर टू वन नोट दैट इज़ PMF IAS के नोट्स. तो दे कवर द सब्जेक्ट एक्सटेंसिवली. मतलब हर एक टॉपिक का दे गो और भी माइक्रो लेवल पे. तो आई डिड दैट बट वो बहुत ज़्यादा नोट्स है. तो आप ये कर सकते हैं अगर आपको नोट्स रेफ़र करने हैं कहीं से तो आप उनको बहुत सिलेक्टिवली रीड करिए. आई मीन किसी टॉपिक को आपको समझ नहीं आ रहा है तो हाँ, तो अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप बस उसको एक बारी उसमें से देख लीजिए बिकॉज वो बहुत ईजी लेवल में उसको समझाते हैं. तो मैंने वो किया था. फिर जोग्राफी मेरा NCERT था और ये PMF के नोट्स थे मेजर सोर्स. ठीक है. उसके बाद में पॉलिटी हो गया अपना, हिस्ट्री हो गया, जोग्राफी हो गया. देन देर वर जैसे इकोनॉमिक्स है. इकोनॉमिक्स में आई डिड नॉट डू एनीथिंग स्पेशल क्योंकि मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था और मेरा बैकग्राउंड भी इकोनॉमिक्स में है. तो मैंने उसे स्पेशल कुछ नहीं किया बट आई डिड इकोनॉमिक सर्वे इज़ मस्ट. और उसकी भी मैंने खुद ने भी उसकी समरी करी थी, बजट की भी समरी करी थी. एंड
जो भी टॉपिक्स मुझे नहीं समझ में आते थे, देयर इज़ अ नोट्स ऑफ श्री राम आईएएस। तो वो क्या करते हैं, वो हर पूरा जो सिलेबस है उसको पॉइंट फॉर्मेट में और टॉपिक फॉर्मेट में देते हैं। तो जैसे भी कोई भी टॉपिक है जो मुझे नहीं पता, जिसका मेरे पास कंटेंट नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल में तुम्हारा थोड़ा सा अलग हो जाता है, मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में। तो जीएस का जो भी स्पेसिफिक टॉपिक्स थे, तो मैं उसको क्या करती थी, श्री राम आईएएस के नोट्स से कर लेती थी उसको। तो वो मेरा एक सोर्स था। और बस मेरे 3 ही सोर्स थे, एक तो बजट, सर्वे और श्री राम आईएएस के नोट्स, और बाकी आई हैड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। और आपके लिए एक और सोर्स हो सकता है, वो है रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी। तो वो इंडियन इकोनॉमी को पूरा जीएस के पर्सपेक्टिव से पूरा कवर करते हैं। तो दैट इज़ वन सोर्स। उसके अलावा दीज और उसके अलावा फिर नेक्स्ट वी कम टू एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में देयर जो बायोलॉजी की बुक है 12th की, उसमें जो लास्ट के 4 चैप्टर्स है, आई थिंक 12, 13, 14, 15 और मे बी 13 टू 16, देयर आर 4 चैप्टर्स, जो लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसमें वो कवर करते हैं जो भी मेजर चीज़ें हैं। उसके अलावा जो मेरा मेजर सोर्स था, वो था शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट की बुक। तो उसमें वो जो बुक है वो बहुत, इट इज़ वेरी वाइड एंड ह्यूज। तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे टॉपिक वाइज आप सेलेक्टिवली रीड कर लीजिए, जैसे कि आपने कोई टेस्ट अटैम्प्ट किया। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं कोई टेस्ट अटैम्प्ट करती थी, उसमें मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो आई यूज़ टू सर्च कि ये क्वेश्चन मुझे कहाँ मिल सकता है, मतलब इसका कंटेंट मुझे कहाँ मिल सकता है। तो आई यूज़ टू लुक फॉर द कंटेंट इन द बुक। तो फिर मैं उसके बाद में मैं बुक रेफ़र करती थी। तो माई स्ट्रैटेजी वॉज दिस कि मैंने पहले वो बुक नहीं पढ़ी, और मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में तो बुक ही नहीं पढ़ी थी। तो मैंने सेकंड अटैम्प्ट में ये किया कि मैं आई यूज़ टू गिव टेस्ट एनवायरनमेंट के आफ्टर रीडिंग एनसीईआरटी। और उसके बाद में फिर अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा है एंड देयर इज़ अ लॉट इन द, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा उसमें कि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो आई यूज़ टू लुक द सेम टॉपिक इन द बुक, जो ये शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट की बुक है। तो अगर आपको कवर करना है तो शंकर आईएएस की बुक मतलब काफ़ी अच्छी बुक है पूरा एनवायरनमेंट कवर करने के लिए। और उसके अलावा जो मेजर टॉपिक्स हैं, वो जो भी मेजर इश्यूज़ और जो भी करंट चीज़ें हैं, वो डेफिनेटली आप जो करंट अफेयर की मैगजीन्स हैं उसमें सब कवर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट वी कम टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉज, आई कवर्ड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन इंटायरली फ्रॉम द करंट अफेयर्स। आई डिड नॉट डू एनीथिंग स्पेशल, आई ओनली रेड करंट अफेयर्स और एंड आई ओनली डिड टेस्ट। तो टेस्ट देती थी और उसमें क्योंकि आप जब टेस्ट सीरीज देते हो तो उसमें आपको बहुत सारा कंटेंट व्यू भी मिल जाता है। तो आई यूज़ टू डू टेस्ट एंड देन आई यूज़ टू डू ऑल ऑफ द अदर टॉपिक्स, जो भी करंट अफेयर की मैगजीन्स थी उसमें से। दिस वॉज माई साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वी कम टू जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री आई डिड फ्रॉम विजन आईएएस के नोट्स है, बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री की वैसे तो एनसीईआरटीज़ भी हैं विच एवरी वन डज। आई डिड नॉट डू एनसीईआरटी, आई ओनली डिड, मतलब ऐसा था कि वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं ईयर बाई ईयर। तो इफ़ वी सिंस आई हैड लिटिल टाइम फॉर माई मेंस प्रेपरेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने पहले नहीं पढ़ रखी थी, तो मेरे को जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कम टाइम था, ओनली 2 मंथ्स, तो मैंने उसमें सिर्फ ऐसे किया कि मैंने किसी के नोट्स रेफर कर लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने विजन के कर लिया, आप किसी के भी कर सकते हो बिकॉज ऑल नोट्स आर गुड एंड वेल एंड गुड। तो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नोट्स रेफर करे थे विजन आईएएस के। सिमिलरली डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी मैंने नोट्स रेफर करे थे विजन आईएएस के एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। देन देयर इज़ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी भी मैंने एक्चुअली नोट्स ही रेफ़र करे थे, वाजीराव की जो येलो बुक्स आती है उसके नोट्स। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भी देयर इज़ बुक बाय बिपिन चंद्रा जो पोस्ट इंडिपेंडेंस कवर करती है, बट आई डिड नॉट, बिकॉज वो बुक बहुत मोटी है और सिंस आई हैड लिटिल टाइम तो मैंने बुक स्किप कर दी थी। एंड आई डिड क्या कहते हैं, जो वाजीराम की येलो बुक थी, तो मतलब वो बुक डुएबल है। तो मैंने सिर्फ वो ही पढ़ी थी सिर्फ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। देन वी कम टू एथिक्स। तो एथिक्स, सिंस आई डिड कोचिंग इन माई फर्स्ट ईयर, तो but I did not do ethics की coaching. So I had little idea about the subject. So I started, because there is one basic book which is lexicon for ethics. तो what I did was कि I started by preparation with lexicon. तो मैंने उसको एक बार बेसिक रीडिंग दे दी पूरी लेक्सिकॉन को। तो उसमें मुझे सब्जेक्ट समझ में आ गया कि क्या सब्जेक्ट है। उसके बाद में
सिंस यू कैन मेक नोट्स, आई डिड नॉट मेक नोट्स, तो मैंने क्या किया कि आफ्टर रीडिंग लेक्सिकॉन आई रेफर टू जो वाजीराम की येलो बुक्स हैं, दे मतलब उन्होंने नोट्स फॉर्मेट में पूरा कोर्स कवर कर रखा है, तो आई रेफर टू दोज येलो बुक्स। तो मैंने अपना एथिक्स फिर उन्हीं नोट से किया, और उसके अलावा फिर आई यूज़ टू गिव टेस्ट, और उससे फिर मुझे अपना पता चल गया कि कैसे क्या करना है। देन नेक्स्ट वी कम टू ऐसे प्रेपरेशन। तो ऐसे प्रेपरेशन में आई डिड नॉट डू एनीथिंग स्पेशल, सिंस हम जीएस में इतना कुछ कवर कर लेते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी कंटेंट बहुत सारा है। जो भी हमारा जीएस के हम इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो हमारे पास कंटेंट तो ऑलरेडी है। उसके अलावा विद दैट कंटेंट, तो आई कलेक्टेड सम कोड्स। अब आप कोड्स ऐसे कर सकते हैं कि आप नॉर्मली गूगल सर्च कर सकते हैं, या फिर ऐसा होता है कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स अपनी खुद की भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब कोड्स की एक दे प्रोवाइड 2-3 पेजेस ऑफ कोड्स, तो आप ऐसे ही गूगल सर्च कर लीजिए, आपको कोड्स वैसे मिल जाएंगे। उसके अलावा उसके अलावा आई कलेक्टेड गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे हर एक टॉपिक पे एक गवर्नमेंट स्कीम्स आती है, तो आप मतलब ऐसे आपको डिटेल में नहीं चाहिए, बट आप ऐसे दो तीन रख लो हर एक टॉपिक पे, क्योंकि उसमें आप जब आप ऐसे लिखते हो तो वो आपका ऐसे को एकदम रिच बना देती है, तो यू कैन डू दैट। उसके अलावा आई रेफर टू टॉपर्स कॉपी, जो भी ऐसे राइटिंग है, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि ऐसे को किस तरह से टैकल करना है, स्पेशली फिलोसफिकल एसेस। तो मैं अभी आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी, हाउ आई यूज़ टू टैकल माई ऐसे, स्पेशली फिलोसफिकल ऐसे। बट मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल होती थी कि आई यूज़ टू स्टार्ट विथ अ कोट और सम बैक स्टोरी, मतलब कोई रियल स्टोरी जो है उसको आई यूज़ टू पुट। तो आई स्टार्टेड विद दैट, देन आई यूज़ टू गिव अ कोट, और फिर वैसे वैसे आई यूज़ टू बिल्ड अप माई ऐसे। तो ये स्ट्रैटेजी मेरी तभी डेवलप हुई जब मैंने टॉपर कॉपी देखी और उनकी देखी कि वो हाउ दे टैकल द ऐसे। तो मैं आपको बताती हूँ अपना ऐसे की स्ट्रैटेजी मेरी क्या होती थी। तो देर आर डिफरेंट वेज टू स्टार्ट योर ऐसे। यू कैन आइदर स्टार्ट विद अ स्टोरी, यू कैन आइदर स्टार्ट विद अ कोट, और कोई भी मतलब यू कैन बिल्ड योर ओन हाइपोथेटिकल स्टोरी, कोई फ्यूचरिस्टिक स्टोरी बना दी। फॉर एग्जाम्पल वाटर क्राइसिस है, तो आपने कोई स्टोरी बता दी कि अच्छा द ईयर इज़ 2024 एंड द वर्ल्ड इज़ स्टारविंग, मतलब वर्ल्ड इज़ गेटिंग थर्स्टी, एंड ऐसे से आप मतलब आप एक स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं, एंड यू बिल्ड अ कैरेक्टर कि हाँ देर इज़ अ पर्सन नेम्ड रवि और मे बी निशा और समवन, तो दे आर सफरिंग इन ऑल डायमेंशन बिकॉज ऑफ वाटर स्कैसिटी। तो ऐसे ऐसे आप एक स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं, एंड और पर इसको आप ज़्यादा लंबा मत खींचिए, मतलब कीप इट इन 1 or 2 paragraphs, keep it in 2 paragraphs, and just cover the first page, I mean 3/4 of first page, and then in the next paragraph you connect the story with तो जो भी टॉपिक है ऐसे का, तो अब पता लग जा चाहिए ना एग्जामिनर को कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। तो जो भी स्टोरी लिखी उसके नेक्स्ट आप उसको किसी किसी मतलब जो भी आपका टॉपिक है उससे कनेक्ट करिए, देन गिव 1 paragraph टू दैट, तो आपका एक होलिस्टिकली कवर हो जाएगा वो पूरा कि अच्छा आपने स्टोरी बता दी, आपने कनेक्ट कर दिया। एंड नेक्स्ट यू डू इज़ आइदर यू लर्न सम कोट्स, कि आपने कोई उसके बाद में एक कलेक्टिंग कोट लिख दिया कि जल ही जीवन है, या फिर मतलब ऐसे ही कुछ कि बूंद बूंद से सागर बनता है, समथिंग लाइक दैट। आप ऐसे कुछ कुछ कोट्स याद कर लीजिए, मे बी हिंदी इंग्लिश दोनों ही। तो फिर आप वो कोट लिखिए। नेक्स्ट यू स्टार्ट विथ कि अब आप ऐसे के आपको ऐसे में बहुत पेजेस मिलते हैं, 8 पेजेस मिलते हैं, आपको कवर करने हैं वो सारे पेजेस, तो यू डिवाइड योर ऐसे इन टू। आई यूज़ टू डिवाइड माई ऐसे इन 3 सब ऐसेज, मतलब कि आई यूज़ टू गिव हेडिंग्स, 3 हेडिंग्स देती थी मैं। तो फर्स्ट हेडिंग में आपने कुछ इश्यूज़ बता दिए उसके कि वाटर स्कैरसिटी क्यों हो रही है, या फिर करंट स्टेटस बता दिया। फिर सेकंड में आपने बता दिया कि इसके इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। फिर नेक्स्ट में आपने कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स बता दी जो नेक्स्ट टॉपिक आप देंगे, और ऐसे करते करते आप कंक्लूड कर दीजिए जो भी पूरा ऐसे है उसको। अब जो आपने सब टॉपिक्स लिखे हैं उसमें व्हाट यू डू इज़ कि जैसे आपने इसके कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए कि वाटर स्कार्सिटी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। अब उसमें आप गो डायमेंशनली, मतलब कि सोशल डायमेंशन क्या है, इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है। सोशल एज इन कि वाटर स्कार्सिटी होगी तो पीपल विल स्टार्व, और मतलब जो इनक्वालिटीज़ है दे विल इंक्रीज बिकॉज रिच विल गैदर ऑल द वाटर विद देम। तो ऐसे कर करके आप यू स्प्रेड योर ऐसे डायमेंशनली।
तो दिस इज़ माई बेसिक ऐसे स्ट्रैटेजी, और यही मैं फिलोसफिकल ऐसे में भी करती थी. आई यूज़ टू डिवाइड माई ऐसे इन 2-3 सब ऐसेज एंड आई यूज़ टू कवर देम डायमेंशनली. तो ये मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी थी. देन वी कम टू आंसर राइटिंग. फॉर दोज हु आर गिविंग, who are expecting to give mains this year, what you should do is you start your answer writing from next, or maybe next to next week onward, but latest by last by June end you should start your answer writing. And answer writing के लिए I will tell you, I was also a bit hesitant when I started my answer writing. तो बट until you don't start, your answer writing won't start and you won't improve. सो आप एक टेस्ट लीजिए, आप बस उसको एक बारी, आप जैसे भी आपको आता है आप बस उसको एक बारी अटेम्प्ट कर लीजिए, और फिर उसके बाद में वंस द टेस्ट गेट रिव्यूड, आपको जब वो रिव्यू टेस्ट मिलता है, चेक टेस्ट मिलता है, तो उसमें दे गिव यू कमेंट्स कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज़ है, और कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो. तो आपका जब वो आपको रिव्यूज़ देंगे तो आप उस पर बिल्डअप करेंगे. तो जस्ट स्टार्ट योर आंसर राइटिंग. आपको जैसा भी समझ आता है, देर इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर टू एन आंसर विच आई विल टेल यू. एन आंसर इज डिवाइडेड इंटू 2-3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज़ यू स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन. जैसे कि कोई भी टॉपिक है तो उस पर आप, या पे आपको डेटा याद है, या आपको कोई करंट इशू याद है उस पर, तो यू स्टार्ट विद दैट. या फिर पॉलिटी में तो बेसिक स्ट्रैटेजी इज टू यू स्टार्ट विद अ कोई भी आर्टिकल, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, या फिर फंडामेंटल राइट्स, या फिर DPSP, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, यू स्टार्ट विद दैट. कोई भी आर्टिकल नंबर से. ये तो बेसिक स्ट्रैटेजी है पॉलिटिक में. तो यू स्टार्ट विद, और गिव एटलीस्ट 2-3 लाइनर ऑफ इंट्रोडक्शन. उसके बाद में यू स्ट्रेट अवे जंप टू द डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन. जैसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा हुआ है, तो आप, जैसे क्वेश्चन हमेशा 2 या 3 पार्ट में पूछते हैं वो, तो यू टेक द फर्स्ट पार्ट, जो भी फर्स्ट पार्ट है उसी को आप एज ए हेडिंग देके आप बस उसको पॉइंट फॉर्मेट में चालू कर दीजिए आंसर को लिखना. फिर जो भी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है उसको आप वापस से एक हेडिंग देके उसको नेक्स्ट पार्ट में चालू कर दीजिए. फिर जब आपके सारे, और इस तरह से आपके ना सारे टॉपिक्स, जो भी क्वेश्चन के पार्ट है वो कवर हो जाएंगे, और आपको आपका कुछ छूटेगा भी नहीं. और फिर इसके बाद में ऑलवेज रिमेंबर टू गिव कंक्लूजन, बिकॉज हम क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी लिखते लिखते हम कंक्लूजन भूल जाते हैं. बट ऑलवेज गिव कंक्लूजन, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. मतलब इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, दैट मीन्स यू आर वेल अवेयर कि हाँ आपको, आपने कंक्लूड भी किया आंसर को, यू मतलब ऐसा आपने छोड़ नहीं दिया आंसर को. तो हमेशा लास्ट में कंक्लूजन दीजिए, कुछ भी 2-3 लाइनर का, या फिर वे फॉरवर्ड दे दीजिए, या फिर कोई भी कोई सोशल इशू का क्वेश्चन है तो आप कोई गवर्नमेंट स्कीम बता दीजिए कि लास्ट में, कि हाँ मतलब गवर्नमेंट इज़ टेकिंग स्टेप एंड बाय डूइंग दिस 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 दिस. तो ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा. तो आंसर का हमेशा यही फॉर्मेट होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, देन यू स्ट्रेट अवे जंप टू द क्वेश्चन. जो भी क्वेश्चन के पार्ट पूछे हुए हैं उनको आप हेडलाइन देके अलग अलग पार्ट में एड्रेस कर दीजिए, और लास्ट में 2-3 लाइन का आप हमेशा कंक्लूजन लिखिए. तो ये बेसिक आंसर राइटिंग होती है. आप एक बार आप आंसर राइटिंग जब करना स्टार्ट करें तो डू दिस, और फिर उसके बाद में यू गेट कमेंट्स फ्रॉम द कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे भी आप अपनी टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, एंड देन इम्प्रूव अपॉन इट. और जैसे कि आपने टेस्ट दिया, तो जैसे आपने टेस्ट दिया, आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद में दे गिव यू सैम्पल आंसर्स, जो भी आंसर आपने जो भी टेस्ट आपने दिया है, तो आप अपना, और जो जो उनका दिया हुआ जो सैम्पल आंसर है उनको आप कंपेयर करिए, और उनमें देखिए कि आपने क्या क्या मिस कर दिया और क्या क्या आप और लिख सकते थे. तो मैं क्या करती थी, अपनी जो भी टेस्ट कॉपी होती थी, तो मैं उसी में साइड में जो स्पेस होती थी मैं वहाँ लिख देती थी कि दिस 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 आई हैव मिस्ड, और ये मैं और लिख सकती थी, और मैं इसको अपने ही जो पॉइंट्स होते थे मैं उसको साइड में लिख देती कि ऐसे ऐसे मैं इसको इम्प्रूव कर सकती थी आंसर को. तो हम तो एट द एंड ऑफ द वीक आई यूज़ टू रिवाइज माई आंसर कॉपीज़ की क्या क्या मेरी गलतियाँ थी और क्या क्या मैं इम्प्रूव कर सकती थी. तो ऐसे ऐसे करते करते जब आप बार बार करेंगे इस चीज़ को, तो आपको आपको पता चल जाएगा कि आपकी आंसर राइटिंग किस डायरेक्शन में होनी चाहिए. आप अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी व्हेन यू डू इट कंटिन्यूसली. तो मैं यही करती थी, ये मेरा बेसिक आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी थी. बट आई वुड एडवाइज़ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि यू स्टार्ट योर आंसर राइटिंग एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज हम हेजिटेशन में आंसर राइटिंग स्टार्ट ही नहीं करते हैं. तो ये मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी थी. नाउ I'll take up some of your questions. So somebody asked me what's your option. My option was economics. Since my graduation was also from economics, I did my both BS and MS in economics. So I took up economics as my optional. Somebody asked me how to make notes from mains exam. So
strategies differ from people to person. I am not fond of notes making. I did not make a lot of notes for my GS preparation or my optional preparation. So I am more into books, मतलब रीडिंग बुक्स. तो मैंने अपने नोट्स बहुत कम बनाए थे. और मेंस के लिए व्हाट आई विल टेल यू व्हाट आई यूज्ड टू डू. आई यूज्ड टू गो थ्रू जो भी करंट अफेयर्स हैं उसमें से, और टॉपिक वाइज टॉपिक आई यूज्ड टू कलेक्ट 2-3 थिंग्स. जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, तो उसमें आपके पास आया क्रिप्टो करेंसी का टॉपिक, या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आया आपके पास में. तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक मैंने अपने नोट्स में लिख लिया, और उसमें जो भी करंट जो भी उसका कोई भी डेटा या स्टैटिस्टिक्स है कि इसका भी क्या स्टेटस है, या फिर कोई करंट लॉज है, या फिर कोई रिसेंट इस पर कोई चर्चा चल रही है, तो ऐसे करके ना मैं 5-6 लाइनें लिखती थी बस एक टॉपिक को लेके. तो उसमें क्या होता था कि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, तो उसमें आंसर राइटिंग में भी यू हैव टू कवर एटलीस्ट 5-6 थिंग्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है. तो अगर आपके पास इस तरह की चीज़ें लिखी हुई है फ्रॉम करंट अफेयर्स की 5-6 चीज़ें एकदम इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज़ वेल एंड गुड. यही मेरे बस मेंस के वो होते थे, नोट्स होते थे कि मैं करंट अफेयर्स, या फिर मैं बताती हूँ मैं अपने नोट्स कहाँ से बनाती थी. फर्स्ट इज़ करंट अफेयर्स. सेकेंड इज़ जो भी मैं आंसर लिखती थी, मतलब जो भी मैं टेस्ट सीरीज देती थी उसके जो सैम्पल आंसर्स वो देते थे, तो वहाँ पे मतलब जैसे उसमें 20 क्वेश्चन आते थे, तो मतलब दे बेसिकली कवर 20 टॉपिक्स इन द टेस्ट सीरीज. तो आई यूज़ टू डू इज़ कि मैं उन्हीं आंसर्स को लेके जो भी टॉपिक है, तो आई यूज़ टू कवर माई नोट्स फ्रॉम दैट. तो यही मेरी नोट्स मेकिंग थी. आई डिड नॉट मेक नोट फ्रॉम माई स्टैटिक पार्ट की मैंने स्पेक्ट्रम उठाई या उसमें से मैं नोट्स बना रही हूँ. आई डिड नॉट डू दैट. मैंने बस जो भी करंट अफेयर्स थे और जो भी टेस्ट सीरीज थी वहीं से नोट्स बनाए थे अपने. तो आप अगर आपको नोट्स बनाने हैं, यू आर इनटू नोट्स मेकिंग, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप जैसे स्पेक्ट्रम है विच इज़ अ बहुत बड़ी बल्कि बुक है, आप देख सकते हैं. तो उसमें आप ये करिए कि जैसे जैसे टॉपिक है कोई भी, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, तो आप ये करिए कि आप ना ऐसा होना चाहिए आपके पास में कि टॉपिक लिखा हुआ है और उसमें ना 5-6 पॉइंट्स ही होने चाहिए आपके उसको लेके कि ये कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, इसमें मेजर प्रोग्रेशन क्या थी, कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और वे फॉरवर्ड मतलब इसके नॉन कॉपरेशन का इम्पैक्ट क्या था इन द ओवरऑल इंडिपेंडेंस मूवमेंट. तो बस आपके पास ये 5-6 चीज़ें ही कवर होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे आएगा, तो एग्जाम वुड आस्क यू क्वेश्चंस अराउंड दीज 5 or 6 थिंग्स ओनली. तो आप यू डू ओनली 5-6 थिंग हर एक टॉपिक में. इस तरह से आप हर एक टॉपिक को इसी तरह से कवर करिए अगर आपको नोट्स मेकिंग करनी है. बिकॉज हम क्या करते हैं, हम कोई टॉपिक उठाते हैं, हम उसको फिर वापस से उतना ही लिख देते हैं, तो हमारी जितनी बल्कि बुक होती है उतना ही बल्कि हमारे नोट्स बन जाते हैं, तो विच इज़ नॉट वेरी हेल्पफुल बाद में रिविजन करने के लिए. तो यू डू दिस, मतलब आप 5-6 पॉइंट लिखिए हर एक टॉपिक पे. दैट्स हाउ योर नोट्स मेकिंग शुड गो. में हाउ टू स्टार्ट फॉर GS हिस्ट्री फॉर IES. आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस इज Indian Economic Services. So for history GS you can start with the basics NCERTs, जो भी पुरानी NCERTs है, ओल्ड NCERTs. एंड उसके बाद में वंस यू आर डन विद दैट, तो आप वैसे तो NCERTs आर इनफ जो एंशियंट और मिडिवल की है, दे आर इनफ. उसके अलावा जो मॉडर्न की है उसमें यू कैन एक्सटेंसिवली डू स्पेक्ट्रम में दे कवर एवरीथिंग. तो ये 3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं. इसके अलावा इफ़ यू वांट टू डू मोर, तो फिर देर इज़ तमिलनाडु की 11th की NCERT विच इज़ लाइक दे कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो भी अपन को वर्ड्स दिखते हैं, डिफरेंट वर्ड्स इन द एग्जाम, सो समटाइम्स दे कम फ्रॉम दोज NCERTs. तो अगर आपको कुछ यू वांट टू गो बियॉन्ड, तो आप ये कर सकते हैं, आप 11th की तमिलनाडु की NCERT कर सकते हैं. उसके अलावा आप जैसे मैंने वाजीराम की येलो बुक्स रेफ़र करी थी, उसी तरह से आप किसी कोचिंग मटेरियल को भी रेफ़र कर सकते हैं. तो आई ओनली डिड वाजीराम की, तो आई कैन रेफ़र यू कि वाजीराम की आप कर सकते हैं येलो बुक्स. मेरे टाइम में दे वर वेल गुड एंड इनफ. बस लेकिन ये 3-4 ही सोर्सेज हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डोंट स्ट्रेच योर सोर्सेज. मतलब ऐसे नहीं कि आपने एक टॉपिक उठाया एंड यू कवर इट फ्रॉम 10 डिफरेंट बुक्स. तो डोंट डू दैट बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर प्रेपरेशन. आई डिड दैट इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट कि मैंने एक ही सोर्स की बहुत सारे, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि नहीं UPSC है तो दे डिमांड मोर. तो आई यूज़ टू कवर थिंग्स फ्रॉम वेरियस कोचिंग मटेरियल या वेरियस बुक्स.
एक ही टॉपिक की मैं 5-6 चीज़ें पढ़ लेती थी, तो दैट वाज वेरी हार्मफुल, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं होता था। फर्स्ट थिंग इज़ दैट, एंड सेकंड थिंग इज़ समटाइम्स व्हाट दे डू इज़ कि मतलब हर एक मटेरियल में द डेट्स एंड द जो भी पर्टिकुलर्स है दे डिफर, तो विच इज़ वेरी हार्मफुल। तो इसलिए स्टिक टू वन थिंग, जैसे कि एनसीईआरटी है तो दे आर हाईली ट्रस्टेड, तो आप वो कर सकते हैं। बट कीप योर सोर्सेज लिमिटेड, वेरी लिमिटेड। जो आपने सोच लिया है, अनट्रस्ट योर सोर्सेज। ये आपने सोच लिया है कि मेरे को बस इन्हीं टॉपिक से रेफर करना है, तो उसके आप डोंट स्ट्रेच दैट, क्योंकि और जस्ट ट्रस्ट दो सोर्सेज एंड जस्ट प्रैक्टिस मोर। When to start for mains. If you are giving the next mains, then you should start your preparation from now on, and even if you are giving your mains this year, then also you should start your mains right now, because जो भी prelims की preparation है, which is a subset of mains की preparation, तो तो बेसिकली वही है कि आप अगर मेंस का प्रेपरेशन कर रहे हो तो दैट इज़ कि आप प्रीलिम्स का भी प्रेपरेशन कर रहे हो, तो दे बोथ आर वन एंड द सेम। व्हाट आई डिड वाज कि मैं अपना बताती हूँ, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आई स्टार्टेड विथ मेंस की प्रेपरेशन, एंड जस्ट 1.5 months बिफोर माई एक्चुअल प्रीलिम्स, तो मैंने आई कम्प्लीटली स्विच टू ओनली प्रीलिम्स, मतलब मैं उसके टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी। आई डिड पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। तो बिफोर दैट आई वॉज ओनली डूइंग मतलब मेजरली मेंस, मतलब जैसे आंसर राइटिंग कर ली, थोड़ी नोट्स मेकिंग कर ली, उस तरह से। बट 1.5 months और 2 months बिफोर प्रीलिम्स यू शुड स्टॉप योर मेंस प्रेपरेशन एंड यू शुड मतलब इंटायरली फोकस ऑन प्रीलिम्स, क्योंकि आप प्रीलिम्स का एक मोड होता है, मतलब वंस यू गेट इन दैट मोड, तो आप फिर बस जैसे आप हर दिन या हर ऑल्टरनेट दिन क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो प्रीलिम्स का, तो आप एक जोन में आ जाते हो कि आप वो क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस करने के जोन में होते हो। तो मतलब जस्ट 2 months बिफोर द एक्चुअल प्रीलिम्स यू शुड स्टार्ट एक्सटेंसिवली प्रीलिम्स, और उससे पहले आप मेंस का पढ़ाई करिए। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। विच इज़ द बेस्ट न्यूज़ पेपर फॉर यूपीएससी? आई डिड द हिंदू, एंड देयर टू मेजर पेपर, एक तो हिंदू हो गया और फिर दूसरा इंडियन एक्सप्रेस हो गया। यू कैन रेफर टू आइदर ऑफ दोज, मतलब इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है यू डू दैट। जैसे मैंने आई स्टार्टेड विथ हिंदू, फिर बीच में आई स्विच टू इंडियन एक्सप्रेस, एंड देन आई अगेन स्विच टू हिंदू। तो इनमें कोई ऐसा नहीं है कि दे आर कवरिंग द डिफरेंट न्यूज़, दे आर बेसिकली कवरिंग द सेम थिंग। तो आप कोई भी एक रेफर कर लीजिए, इस पर कोई प्रेफरेंस नहीं है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। देन सी साट स्ट्रैटेजी। सो सी साट में आप ये करिए कि जो भी बेसिक आप द बेस्ट वे टू प्रिपेयर सी साट इज जो भी पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है यू टेक देम। आप मैं क्या करती थी, आई यूज टू टेक प्रिंट आउट्स जो भी पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते थे, एंड आई यूज टू प्रैक्टिस देम बाय माई ओन। तो सिंस आई कम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, साइंस एंड मैथ्स बैकग्राउंड इन माई 11th-12, तो मेरे को जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी वो पहले से ही थी। तो मैं आगे प्रैक्टिस करने के लिए व्हाट आई यूज टू डू इज़ कि मैं बस क्वेश्चन पेपर लेती थी एंड स्टार्टेड सॉल्विंग। और जैसे ऐसे होता है कि उसमें कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती है जिनके आपको सोल्यूशन वैसे मिल जाते हैं, जैसे कि इफ़ यू टेक अप विद, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट वन एग्जांपल, दैट इज़ जैसे कि देयर इज वन क्वेश्चन विच इज़ बोर्ड विच गोज अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके आपको फॉर्मूला मिल जाते हैं, और जैसे प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, सिंपल इंटरेस्ट, तो इन सब के आप ना क्या करिए, वैसे आप ऑनलाइन अगर सर्च करेंगे तो आपको वैसे भी आई थिंक किसी कोचिंग मटेरियल का आपको वो मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा कवरिंग ऑल ऑफ दिस बेसिक फार्मूलाज। तो एक बार आप ना किसी भी मटेरियल को रेफर कर लीजिए एंड यू गो थ्रू दैट मटेरियल में एक बारी, और उसके बाद में आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस एक बुक आती है आई थिंक दीक्षा की, सोल्यूशन ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सी सैट की भी, तो मैंने भी वही ली थी। तो उसमें दे लास्ट में दे गिव आंसर्स और उसका सोल्यूशन भी देते हैं छोटा सा। तो उससे क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, और बिकॉज सी सेट के क्वेश्चंस गेट रिपीटेड और मतलब सेम ही पैटर्न पे फॉलो करते रहते हैं वो। तो बेस्ट वे, आप इधर उधर मत भटकिए और डोंट गो थ्रू कि हाँ मैं इसका टेस्ट कर लेता हूँ, उसका टेस्ट कर लेता हूँ, कर लेती हूँ। आप बस पास्ट ईयर के पेपर उठाइए, राइट फ्रॉम 2010 से तो आप करिए ही करिए, तो 2010 से 21, तो इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं ना, इतने सारे क्वेश्चन हैं। आई थिंक इफ़ यू डू दैट तो आपका वैसे ही आपका सी साट इंप्रूव हो जाएगा। और जो भी इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है यू डू दैट फ्रॉम द पास्ट ईयर क्वेश्चन इटसेल्फ। तो यही सी साट की बेसिक स्ट्रैटेजी है।
अगर आपने ये कर लिया तो सीसैट आपका डेफिनेटली कोई रोक ही नहीं सकता क्लियर होने से, तो आप ये करिए। somebody asked me, मैम मेंस में नकल हुई क्या? नो, नो, अ बिग नो, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं। दैट एग्ज़ाम हॉल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। इफ़ यू फाइंड चीटिंग और इफ़ यू फाउंड लर्किंग अराउंड और लुकिंग इनटू समबडी अदर्स कॉपी, तो आपको बहुत हैवी कॉस्ट कर सकता है, बिकॉज इफ़ यू आर फाउंड चीटिंग तो यूपीएससी कैन परमानेंटली बैन यू, तो दैट इज़ अ बिग नो। But yeah, that is it. These are the questions we get. Hey, ma'am, I completed my paper one of economics. So now how to approach paper two? So paper two के लिए there is two major sources. For pre-independence there is a book by Tirthankar Roy, which cover up to 1947. And then after that 1947 Uma Kapila's book on Indian economy. Those are the major sources, जो दोनों major sources है बस Indian economy को cover करने के लिए. And if you want to go forward, what you can do is you can refer to toppers के जो भी notes है. तो I also refer to toppers के notes because मतलब if you are making your own notes you are basically wasting a lot of time. Even if you want to make notes you can make notes, बट आई वुड सजेस्ट कि आप टॉपर के आंसर मतलब नून के नोट्स दे दो, बिकॉज दे कवर द नोट्स वेरी एग्जॉस्टिवली एंड एक्सटेंसिवली एंड कवरिंग एवरी आस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो भी रिक्वायर्ड है. तो जैसे कि आई वुड रेफर यू 2-3 टॉपर्स. वन इज़ अनुराग कुमार, देन देर इज़ गौरव अग्रवाल, उनके नोट्स आर वेरी गुड. एंड देन तेजस्वी राणा. तो एक बार इनके सबके ब्लॉग्स हैं, इन सबके नोट्स ऑनलाइन अपलोडेड है. आई ऑल्सो रेफर टू देयर नोट्स, तो आप भी उनको रेफ़र कर लीजिए, बिकॉज एक बार आप उनको देख लीजिए, क्योंकि हमें इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं विच आर नॉट रिक्वायर्ड, और हमारा उसमें टाइम वेस्ट होता है. इसलिए बेस्ट वे फॉरवर्ड इज़ कि आप टॉपर्स के एक बार नोट्स देख लीजिए. I also did that. Which book is best for economics optional paper 2? I already told you. Uma Kapila की book है Indian economy पे, you can refer that. Can we rely on Mishra and Puri for optional paper 2? And can we? हाँ, definitely you can rely on Mishra and Puri. I did not do Mishra and Puri because I already did Uma Kapila and then later got to know कि Mishra and Puri is also a good book. तो अगर आप एक कर रहे हैं तो you can skip the other. Me ma'am, how to manage time? This is a question which I get all the time. So managing time is difficult because after studying for so many hours you get bored and you lose the motivation. तो आप ये करिए. Somebody told me in my preparation time कि you don't look at the मतलब futuristic जो भी होने वाला है, लुक एट डे बाय डे शेड्यूल. मतलब आप अपना आज का शेड्यूल बनाइए कि आज मुझे ये चीज़ें कवर करनी है. एंड ऐसा तो होता नहीं है कि टाइम मतलब कितने घंटे आपने पढ़ाई करी दैट विल मेजर कि आपका कितना कोर्स कवर हुआ है. तो आप अपना टाइम के बेसिस पे अपना मेजर मत करिए. आपने जो डिसाइड किया कि आज मुझे ये 4-5 चीज़ें करनी है, तो अगर आपने बाय द एंड ऑफ द डे इफ़ यू हैव डन दैट, और ऐसा हुआ है कि मतलब सिर्फ 5-6 घंटे पढ़ाई करी है एंड बट यू हैव डन ऑल द थिंग्स यू हैव थॉट ऑफ, तो बी सेटिस्फाइड. मेन थिंग इज़ बी सेटिस्फाइड एंड बी हैप्पी. फर्स्ट टाइम में मैं पूरे टाइम स्ट्रेस में रहती थी एंड दैट इम्पैक्टेड मी अ लॉट नेगेटिवली. तो सेकेंड टाइम में आई वॉज हैप्पी एंड आई वॉज सेटिस्फाइड. मैं डे बाय डे शेड्यूल फॉलो करती थी. तो जैसे मतलब आप ऐसे करिए कि जैसे आज आपका दिन है, बाय द एंड ऑफ द डे रात में यू मेक मतलब मैं एक डायरी में लिखती थी कि मुझे अगले दिन क्या क्या करना है. तो मतलब मेरे दिमाग में पहले से ही क्लियर होता था कि नेक्स्ट डे उठ के मुझे क्या क्या करना है. तो जब मेरा डे नेक्स्ट डे स्टार्ट होता था तो मेरे को पहले ही पता होता था ये सारी चीज़ें मुझे करनी है आज. तो आई जस्ट मतलब अगर मैंने बाय द एंड ऑफ द डे मैंने वो सारी चीज़ें कर ली हैं तो मैं बस खुश रहती थी. आई डिड नॉट मेजर माई स्टडी बाय द आवर्स आई गिव. तो जैसे कभी कभार ऐसा होता था कि मैं सिर्फ 5-6 घंटे ही पढ़ रही हूँ, कभी कभार ऐसा होता था कि मैं 8-9 घंटे भी पढ़ रही हूँ, और मतलब जब एग्ज़ाम पास आता था तो ऐसा भी होता था कि मैं 10-11 घंटे ही पढ़ रही हूँ. तो जो टाइमिंग है दैट विल डिफ़र, बट मतलब आपको ये करना है कि आप जस्ट बी सेटिस्फाइड, और आपको जो भी कवर करना है, जैसे कि अगर आपने ये सोच रखा है कि इस मंथ में मुझे इतने टॉपिक ये सब्जेक्ट मुझे कंप्लीट करने हैं, तो फिर उन सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स है डिवाइड दैट डे बाय डे, कि मतलब हर दिन आप ये कर लिया है. एंड ऑल्सो जैसे कि आफ्टर 6-7 डेज गिव अ बफर डे, कि मतलब जैसे ऐसा होता ही है विच इज़ वेरी नॉर्मल कि आपका कोर्स नहीं हुआ या फिर आपने जो सोचा है वो नहीं हुआ.
बट आफ्टर 5-6 डेज गिव अ बफर डे कि आपने जो भी नहीं किया है आप उस बफर डे पे कवर करेंगे। तो मैं ये करती थी कि आफ्टर 6 डेज आई यूज़ टू गिव 1 or 2 बफर डेज, जिसमें मतलब जो भी मेरा छूट गया है या जो भी मुझे एक्स्ट्रा करना है वो मैं उसमें करती थी। तो आपका मतलब टाइम प्लान इसी हिसाब से होना चाहिए। मैम इकोनॉमी की तैयारी हिंदी मीडियम से कैसे करें? हिंदी मीडियम में भी आई थिंक देयर आर बुक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी। आप एक बार इसको ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, फिर वो बुक्स आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएंगी। तो आपको इंडियन इकोनॉमी की हिंदी में भी सेम बुक्स ही हैं, तो आप एक बार इसको गूगल सर्च कर लीजिए हिंदी की बुक्स और आपको मिल जाएगी। तो मतलब कंटेंट तो सेम है ही, तो आप उसमें से कर लीजिएगा। How many previous year economic survey budget we need to prepare for optional? Can we do it from compilation or do we need to read it from line to line? I did not read the survey from line to line, and I only did जैसे कि I studied for 3 years. This was my second attempt. तो मैंने लास्ट ईयर का तो बजट और सर्वे कर ही रखा था और इस टाइम का भी मैंने किया ही था। तो इफेक्टिवली मेरे पास 2 इकोनॉमिक सर्वे और बजट हो गए थे। बट ऐसे ज़रूरी नहीं है, मतलब समवन विल सजेस्ट यू कि आपको 2-3 साल के पिछले सर्वे और बजट करना है, बट दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर इस साल का बजट और सर्वे इफ़ यू आर क्लियर विथ इट तो मतलब विच इज़ वेल एंड गुड, इतना ही मतलब रिक्वायर्ड है। इज़ कोचिंग नेसेसरी? According to my experience, I would say कि coaching is not that necessary. Self study is sufficient in the UPSC preparation. बहुत लोग करते हैं. I did because I had no idea about UPSC preparation उस टाइम पे. बट आप अगर आपके पास अभी थोड़ा टाइम है तो यू कैन सर्च फॉर UPSC में क्या क्या सिलेबस है, व्हाट सोर्सेज यू कैन रेफर, ये सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। एंड देयर आर सो मैनी यूट्यूब वीडियोज़ ऑफ toppers talking about their strategies, lecture videos, coaching videos। तो अगर आपको लेनी है इफ़ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो आप सब्जेक्ट वाइज कोचिंग ले लीजिए। बट अकॉर्डिंग टू मी कोचिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कोचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट ऑन सम आस्पेक्ट कि आपको कोई डायरेक्शन मिल जाती है। यू कम इन टू इंटरेक्शन बहुत सारे लोगों से, तो अभी बहुत सारे लोगों को जान जाते हो, तो यू मतलब आप एक माहौल में एंटर कर जाते हो when you get serious and you get a lot of inputs from other people। तो कोचिंग आई थिंक उसी चीज़ों में मुझे हेल्प करी है। और जैसे पॉलिटी और ज्योग्राफी 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें मुझे कोचिंग हेल्प करी है। बाकी तो आई थिंक आई कुड हैव डन द 2 सब्जेक्ट्स मैंने खुद से ही करे थे, क्योंकि कोचिंग मैंने इतना पढ़ा नहीं था एंड आई डिड माई सेल्फ स्टडी ही उसके बाद में। तो कोचिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन सम सब्जेक्ट्स तो आप उसकी सब्जेक्ट वाइज कोचिंग ले लीजिए। Okay, my Telegram channel is by Neha Byadwal, AIR260. That is my Telegram channel name. ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा बेटर होता है मैम? ऑप्शनल सब्जेक्ट दैट डिपेंड्स ऑन योर ओन प्रेफरेंसेस। जैसे मेरा तो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड था तो इसलिए आई चोज इकोनॉमिक्स। बट अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली यू गो फॉर दैट ऑप्शनल, जो भी मतलब आपका कोई भी प्रेफरेंस हो सकता है उसमें। और ये जो चीज़ें होती है ना कि ये दिस ऑप्शन इज़ वेरी स्कोरिंग, बट अगर वो स्कोरिंग तो तब है ना जब आपको उसमें उस ऑप्शन में इंटरेस्ट आ रहा हो एंड यू आर मतलब रेडी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द सब्जेक्ट, तो वो तो तब इम्पॉर्टेंट होएगा, तब आपको मैटर करेगा। तो अगर आपका जेन्युइनली किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसी सब्जेक्ट को चूज़ करें, बिकॉज उसको क्योंकि ऑप्शन में यू कवर द सब्जेक्ट एट अ ग्रेजुएशन लेवल, तो आपको एक जेन्युइन इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है ऑप्शन में। अदरवाइज मतलब एट द मिड ऑफ द प्रिपरेशन आपको ऐसा लगेगा कि मैंने क्या सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है। तो मैं अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ ये चीज़, तो लेटर दे रिग्रेट। तो आपको जिस सब्जेक्ट में जेन्युइन इंटरेस्ट है यू टेक दैट सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है वो। मतलब मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड माई कॉलेज सजेस्ट में कि इकोनॉमिक्स में क्यों ले रही हूँ, बिकॉज दैट सब्जेक्ट इज़ नॉट वेरी स्कोरिंग, बहुत कम लोग लेते हैं, बट आई स्टिल डिड एंड आई स्कोर्ड प्रिटी वेल इन इकोनॉमिक्स ऑप्शन बिकॉज आई हैड अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स। तो आपको जो भी इंटरेस्ट है आप वो लीजिए। ऑप्शनल के लिए कोचिंग मैंने वाजीराम से ही ली थी, बिकॉज आई टुक माई GS की क्लासेस भी, क्योंकि मेरे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में दे आर वेरी लिमिटेड कोचिंग मटेरियल या फिर सोर्सेज। तो मैंने वाजीराम से ही ले ली थी जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद में टेस्ट सीरीज़ मैंने ऑप्शनल की जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल उसकी टेस्ट सीरीज़ मैंने ब्लिस पॉइंट से ली थी। तो क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज हैं नहीं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए, तो इसलिए मैंने ये दोनों लिया था। Any coaching you refer for Indian Economic Services? I know that Next IAS runs a course specifically for Indian Economic Service, so you can look into that. शुरू कहाँ से करें मैम? BSc पार्ट 1 में हूँ अभी,
तो शुरू आप करिए बेसिक एनसीईआरटी से ही, दैट मैंने पहले भी आपको बताया कि आप बेसिक एनसीईआरटी से चालू करिए। मैम, आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन ज्योग्राफी और इकोनॉमी। तो इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, ज्योग्राफी के लिए तो देयर इज़ बेस्ट सोर्स, मतलब जैसे मृणाल के वीडियोज़ हैं ऑनलाइन ज्योग्राफी में, और वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे सिखा मतलब तुम्हें चीज़ें बताते हैं, तो आप एक बार वो देख लीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इकोनॉमी में इफ़ यू आर फेसिंग ट्रबल, तो पहले तो आप सबसे इम्पोर्टेंट पहले तो आप एनसीईआरटी देखिए इकोनॉमी की। अगर आप एनसीईआरटी में आपको चीज़ें समझ आ गई है तो आपको एक बेस कवर हो जाएगा इकोनॉमी का। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप करिए। जैसे मैंने आपको श्री राम नोट्स और क्या कहते हैं रमेश सिंह की जो इंडियन इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप उसको रेफ़र करिए। और आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन डू इज़ कि आप ना जैसे आप ना आंसर मतलब क्या कहते हैं प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज़ होती है इकोनॉमी की, उसको आप अटेम्प्ट करिए। फिर आफ्टर यू अटेम्प्ट दैट आप उसको एक बारी रिवाइज़ करो कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी है, और आपकी जो अप्रोच है क्वेश्चंस को लेके और जो अप्रोच एक्चुअल जो जिससे सही आंसर आ रहा है उसमें कितना डिफरेंस है। तो जब आप ये करेंगे बार बार ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी अप्रोच में क्या इश्यूज़ है। तो ऐसे ही आपकी इकोनॉमी इम्प्रूव होएगी। वैसे इकोनॉमी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो मतलब इफ़ यू रीड इट विद इंटरेस्ट तो आपको अच्छे से चीज़ समझ में आएगी, और एक बार अच्छे से चीज़ समझ में आ जाएगी तो आपको कभी भी इकोनॉमी के क्वेश्चन गलत नहीं आएंगे। एथिक्स के लिए क्या क्या करें मैम? एथिक्स के लिए आप जैसे मैंने क्या था, मैंने तो लेक्सिकॉन की एक बारी बेसिक रीडिंग कर ली थी, और उसके बाद में मैंने फिर जो वाजीराम के जो नोट्स है, जो उनकी येलो बुक्स आती है एथिक्स को, तो मैंने वही रेफ़र कर लिया था। उसके अलावा मैंने फिर सीधा आंसर राइटिंग स्टार्ट करी थी, तो आंसर राइटिंग से फिर मेरे को थोड़ा और आइडिया लग गया कि क्या क्या करना है एथिक्स में, तो वैसे आई प्रोसीडेड। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट्स यू प्रिपेयर्ड फॉर जीएस। आई डिड नॉट प्रिपेयर एनी स्पेशल रिपोर्ट्स, बट येस इन इकोनॉमी जैसे मेरा ऑप्शन था तो उसमें आई डिड सम रिपोर्ट, जैसे अशोक गुलाटी की जो है कि डबलिंग फार्मर इनकम बाय 2022, दैट रिपोर्ट। देन देर वर अदर रिपोर्ट्स, पर जीएस के लिए आई डिड नॉट डू एनी थिंग स्पेशल। जैसे कि लोग बोलते हैं एआरसी की रिपोर्ट प्रिपेयर करिए, बट एआरसी की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ऑल्टरनेटिवली व्हाट यू कैन डू इज़ जैसे कि अब उसमें क्या होता है कि एआरसी की रिपोर्ट में जैसे कि दे आर डिवाइडेड इन आई थिंक 12 और 13 सब रिपोर्ट्स, तो टॉपिक वाइज। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि हर एक टॉपिक में लास्ट में दे गिव रिकमेंडेशंस, तो आपको मतलब आप टॉपिक वाइज टॉपिक इफ़ यू कैन रिमेंबर दोज रिकमेंडेशन, दैट इज़ वेल एंड गुड इफ़ यू कैन डू दैट। तो आप बस वो लास्ट में जाके वो जो भी रिकमेंडेशंस हैं उनको आप बस उन्हीं को आप पढ़िए। तो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर दैट तो वो तो काफ़ी अच्छा है, मतलब बट आई डिड नॉट डू दैट क्योंकि मेरे पास कम टाइम था फॉर मेल्स। करंट अफेयर्स फॉर ऑप्शनल लाइक एनी इकोनॉमिक पेपर और ईपीडब्ल्यूडी और एनी अदर, प्लीज गिव सम आइडिया। ओके, आई डिड माई करंट अफेयर्स फ्रॉम जो भी करंट अपने मंथली मैगजीन्स करते हैं उससे ही, और उसके अलावा आई डिड जो भी क्या कहते हैं इकोनॉमिक टाइम्स जो होता है, बट वो भी मैंने बहुत कम टाइम के लिए किया था। उसके अलावा आई सब्सक्राइब टू पीडब्ल्यू, तो उसमें मतलब जैसे कि मुझे कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए होती थी, जैसे कि आई वांटेड टू कलेक्ट मटेरियल ऑन मिसिंग मिडिल, तो उसमें वो टॉपिक बहुत अच्छे से किसी ने पेपर लिख रखा था, तो वो चीज़ अगर आपको लेना है तो वो तो बहुत हेल्पफुल रहता है ईपीडब्ल्यू की सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आपको उसमें ना काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाता है टू बैक योर आंसर इन द मेन एग्जाम। और अगर आप इस तरह से रेफ़र करके कोई पेपर का रेफरेंस दे रहे हो ना, तो आपको जो मार्क्स है वो बहुत हाई मिलते हैं। ऑप्शन के लिए कोचिंग इज़ ना फॉर सेल्फ स्टडी, आइदर ऑफ द टू। अगर आपका इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड है तो सेल्फ स्टडी सफिशिएंट, इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड नहीं है तो कोचिंग मतलब इंपॉर्टेंट होती है। इकोनॉमिक्स ऐसे खुद से समझना इज़ डिफ़िकल्ट। समबडी आस्क्ड मी कि इंग्लिश मीडियम से, हाँ मैं इंग्लिश मीडियम से थी। व्हाट आई डू फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी फ्रॉम क्लास 9, आप एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 9 आप एक बारी बेसिक रीडिंग मार लीजिए उनको, तो आपको समझ आ जाएगा। आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि डू पास्ट ईयर क्वेश्चंस, जो पास्ट ईयर के जो यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के पेपर है, डू दैट। मी यू ऑल्सो प्रिपेयर फॉर आईईएस एंड गिवन दैट आंसर, नो आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर ईएस और नाइदर गिवन द एग्जाम नॉर फिल द फॉर्म। Since independence or Indian economy performance and policies, you can refer Uma Kapila, and additionally you can refer topper notes. And how did you write answers for economics optional? So economics optional answer writing is way different from GS की answer writing. तो GS के आंसर राइटिंग में द जनरल गाइडेंस इज़ कि आप उसको पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए, बट देयर इज़ नो सच थिंग फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। आप उसको पैराग्राफ में लिखिए, but again the answer structure remains the same. You start with an introduction, then you straight away jump to the questions जो भी पूछा हुआ है,
एंड देन जो भी टॉपिक्स सब टॉपिक्स जो भी पूछे हुए हैं यू एड्रेस दैट एंड देन लास्ट में गिवन कंक्लूजन. बट इकोनॉमिक्स ऑप्शन पेपर 1 की मैं जब बात करती हूँ तो उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है डायग्राम मेकिंग एंड यू करेक्टली आइडेंटिफाइंग द जो भी मॉडल जो पूछा गया है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जो भी डायग्राम आप बना रहे हैं आप उसको कीप इट वेरी वेल लेबल्ड. ऐसे नहीं कि बस डायग्राम बना के बस छोड़ दिया. यू ऑल्सो राइट नीचे कि किसका डायग्राम है, जो एक्स और वाई एक्सिस है उसको अच्छे से डिफाइन करिए. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दे गिव पॉइंट्स ऑन दैट, तो वो इम्पॉर्टेंट है. प्रीलिम्स के कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए? तो मैं अपने जस्ट बिफोर 1.5 मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स, तो मैंने हर दिन एक प्रीलिम्स का टेस्ट देती थी. तो कोई क्वेश्चन डिफाइन नहीं है. इफ़ यू आर श्योर कि हाँ यू आर वेल प्रिपेयर्ड तो आप मतलब आप कम टेस्ट दे सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि नहीं आई नीड मोर प्रैक्टिस, तो आप जैसे मैं करती थी, आई यूज़ टू गिव 1 टेस्ट एवरी डे, समटाइम्स 2 टेस्ट इन अ डे. तो आप इसका कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है. तो आप अपने हिसाब से आपकी जो भी आपको लग रहा है जो भी लेवल है उसके हिसाब से आप करिए. Question: what should be the plan till prelims result? So till prelims result you should do 2-3 things. First is identify your sources for the GS preparation. मतलब आप उनको एक लिस्ट में लिख लीजिए कि ये सोर्सेज आई विल रेफर, क्योंकि उसके बाद में यू डोंट डाइवर्ट कि अब ये मेरे सोर्सेज है, बस कीप दैट कि इतना ही करना है मुझे. तो एक बार सोर्स डिफाइन कर लीजिए. सिमिलरली डू फॉर ऑप्शन, ऑप्शन के भी सोर्स डिफाइन कर लीजिए. राइट दैट इन अ पीस ऑफ पेपर और ऑन अ मतलब जो भी आप यूज़ करते हैं ऑनलाइन, कुछ भी जो भी यूज़ करते हैं उस पर, बट डू दैट. फिर सेकेंड थिंग इज़ लुक फॉर जो भी टेस्ट सीरीज होने वाली है, आइदर सब्सक्राइब टू देम और जस्ट कीप देम रेडी कि हाँ मतलब आई विल सब्सक्राइब टू देम. आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, तो मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि कीप दैट कि इस तक आई विल सब्सक्राइब टू वन टेस्ट सीरीज, तो वो कर लीजिए. थर्ड थिंग इज़ जस्ट स्टार्ट योर मेंस की प्रेपरेशन. मतलब ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन है, जस्ट स्टार्ट योर मेंस की प्रेपरेशन. आई स्टार्टेड विद ऑप्शनल, यू कैन स्टार्ट विद जीएस और आइदर ऑप्शनल. ओके, somebody asked me कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश में कैसा बोलना सीखे. सिंस माई बैकग्राउंड इज़ इन इंग्लिश, तो मैंने मेरा इंग्लिश में मैंने काफ़ी बात करी है सिंस माई स्कूल, तो इसलिए मेरी फ्लुएंट है. आप बंगाल से है सो हिंदी भी ठीक करनी है. तो आप अगर आपको हिंदी ठीक करनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप से हिंदी में बात करने की प्रैक्टिस करिए. हाउ टू राइट आंसर इफेक्टिवली आंसर्स हैव सम क्राइटेरियाज कि आप उसको डायमेंशनली पूरी तरह से कवर कर रहे हैं. हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश स्पीकिंग? जस्ट स्टार्ट टॉकिंग yourself in English. That's how you'll improve your English, or start talking to your friends in English. तो ये है. How to deal with pressure during the preparation? Definitely and surely there are times when you are under stress और आपको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता है, and you come under such huge pressure कि आप क्या करें. तो उसके लिए डील करने के लिए स्टार्ट रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि दिस इज़ बिकॉज यू आर डूइंग दिस फॉर योर ओन सेल्फ. तो आप अपने आप को इतना क्यों परेशान कर रहे हैं? आप अल्टीमेटली यू आर डूइंग दिस फॉर योर सेल्फ. तो जब मेरा स्ट्रेसफुल डे आता था आई यूज टू मतलब रिमाइंड मी दैट कि मैं मेरे लिए ही तो कर रही हूँ ये चीज़. तो अगर मुझे आज नहीं मन कर रहा पढ़ने का तो आई विल टेक ब्रेक. और आप ऐसा होता है कि इफ़ यू टेक ब्रेक तो यू कम अंडर गिल्ट, और गिल्ट से फिर ऐसा होता है कि यू गेट मोटिवेशन. आई यूज़ टू गेट मोटिवेशन जब मुझे गिल्ट होता था कि अब मैंने पढ़ाई नहीं करी है. तो फिर आई यूज़ टू मेक अ प्लान कि अब मेरे को आज ये करना है एंड आई विल डू दिस, और फिर आई विल बी सेटिस्फाइड. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जैसे मैंने आपको बोला कि सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस. अगर आपके पास ये दोनों है थ्रू आउट योर प्रेपरेशन, तो आप स्ट्रेस में आके भी आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे, क्योंकि यू आर सेटिस्फाइड विथ योर सेल्फ जो आप प्रिपेयर कर रहे हो. जस्ट इंश्योर दैट कि जो आप कर रहे हो आप उससे कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हो. मेंस के टेस्ट सीरीज प्रीलिम के कितने दिन पहले तक लिख सकते हैं? एज आई सेड, आई टुक माई लास्ट मेंस का टेस्ट 1.5 months बिफोर प्रीलिम्स. तो वो आइडियली बेस्ट टाइम होता है. बस उसके बाद में फिर आप प्रीलिम्स के टेस्ट देने लग जाते हो. इसलिए घर से तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. आई डिड माई प्रेपरेशन फ्रॉम होम, तो आप घर से तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं. करंट अफेयर्स के लिए आई यूज़ टू डू विजन के करंट अफेयर्स, बट आप जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन आती है वहाँ से, बट यू कैन डू फ्रॉम कोई भी कोचिंग मटेरियल, मतलब कोई भी कोचिंग की करंट अफेयर्स, बिकॉज दे आर इफेक्टिवली सेम. तो कोई भी एक आप बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ओनली कीप वन. ऐसे नहीं कि आपने विजन का भी कर लिया, आपने इनसाइड का भी कर लिया, आपने नेक्स्ट आईएएस का भी कर लिया. दैट इज़ वेरी हार्मफुल. तो आप एक ही सोर्स, एक ही मैगजीन रखिए.
I think I've given my email and my my Instagram ID. You can message me there. I will surely reply to that. तो आप वो कर लीजिए. Because once I start my comment section, then there will be so many messages that I won't be able to reply and I won't be able to give the attention. तो आप मुझे directly email कर दीजिए. That way आपको I will definitely reply to that. ऐसे प्रेपरेशन टिप्स और ऐसे प्रेपरेशन इज़ नो डिफरेंट. आप जीएस की प्रेपरेशन वैसे भी कर ही रहे हैं, तो यू हैव इनफ कंटेंट फॉर योर प्रेपरेशन. तो आप यू लुक इन टू द टॉपर्स की जो ऐसे राइटिंग है उसको देखिए एंड यू बिल्ड योर कंटेंट बेस्ड ऑन दैट. तो यही बेसिक में ऐसे की प्रेपरेशन की स्ट्रैटेजी होती है. एथिक्स का आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. एथिक्स के लिए यू कैन रेफर लेक्सिकॉन एंड देन यू कैन रेफर आई डिड वाजीराम की येलो बुक्स फॉर एक्स्ट्रा मटेरियल ऑन एथिक्स. विभास सर की ऑप्शनल कोचिंग, एक्चुअली आई ऑल्सो डिड माई कोचिंग विद विभास सर, माई एंटायर ऑप्शनल कोचिंग. तो ही इज़ अ वेरी गुड टीचर एंड ही कवर्स द कोर्स एक्सटेंसिवली. तो यू कैन because I don't know any other coaching who provides coaching specifically. There's one other, I think Bliss Point also provide coaching, but I'm not very sure of that. But I did my coaching with Vibhas sir and he's an excellent teacher. You can continue with him. Okay, I'll take up this last question on your interview experience. My interview experience was very pleasant. I practiced a lot before giving my actual interview. I took six, I think yes, six mock interviews before giving my actual interview, and so after giving six mocks to become confident, and then in my main interview I wasn't nervous. And the people of UPSC, they are very friendly and they provide with a cordial environment, and they listen to you very keenly and they give you time and they are very pleasant. So ओके, आई टेक अप दिस लास्ट. साइंस से हूँ, अब ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करूँ. तो यू कैन लुक फॉर द सब्जेक्ट्स. जैसे कि आई थिंक बहुत सारे ऑप्शनल हैं. फिजिक्स ऑप्शनल है और आई थिंक केमिस्ट्री भी ऑप्शनल है. तो आप एक बार उनके क्या करिए, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको वेदर यू कैन टैकल दैट. और जो भी उनका सिलेबस है, यूपीएससी सिलेबस दे रखा है ऑप्शन का, तो आप एक बार वो देख लीजिए. तो I think this is it. I will take up all of your next questions in my next session, and you can either email me, go through my Telegram channel, or the email, the Instagram ID that this UPSC Times have mentioned on their page. You can message me on that ID. I will surely reply to all of your doubts. And it was really nice interacting with you, and I hope you do all well. And good luck to all of you.